تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا. بے شبہ درود و سلام نازل ہو اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جس کا نام اس میں گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، خواتین اسلام، نوجوان دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو، جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم امت محمدیہ ہیں. امت محمدیہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کہا، معتدل امت کہا، افراط تفریط سے بچنے والی، میانہ روی اختیار کرنے والی، غلو سے بچنے والی اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار اس امت کو کہا گیا. یاد رکھیے، امت محمدیہ کی عمر بہت کم ہوتی ہے. دوسری قوم جو تھے، پہلی امتیں، دوسرے نبیوں کی، انبیاء کی دوسری جو قومیں تھے، ان کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. مثال کے طور پر نوح علیہ السلام نے اپنے قوم میں 9.5 برس دعوت تبلیغ کیا، یعنی کہ ہزار سال پہلے قوموں کی، پہلے امتوں کی عمر ہوا کرتی تھی. لیکن امت محمدیہ بہت ہو گیا. امید ہے کہ 60 70 80 بہت ہو گیا، لاکھوں میں کوئی 100 تک پہنچ جائے، 100 کے پاس پہنچ جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے کچھ ایسے مواقع فراہم کیے کہ جس میں بندہ عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی وقت بہت کم ہوگا، لیکن ان وقت کے اندر اللہ کی عبادت کرے گا، اس کا جو ثواب سالوں کے برابر، مہینوں کے برابر ہو جائے گا. مثال کر کے جمعہ کا دن ہے، رمضان ہے، رمضان کے اندر 7 رات ہے، شب قدر، لیلۃ القدر جسے ہم کہتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی ایک رات میں کی اللہ کی عبادت کرنا، اگر لیلۃ القدر کو پائے تو 1000 مہینے لگ بھگ لے سکتا ہے. اگر کسی کو اپنی زندگی میں 10 رات مل جائے تو کتنی ہوگی؟ 8 سال کی عبادت ہو جائے. تو ایسے ہی آج کا میرا جو خطبہ جمعہ ہے وہ ہے جمعہ کی تعلیق سے، کہ جمعہ امت محمدیہ کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے کیا پیغام لے کر آتا ہے. ہم آج افسوس ہے ہمارے اندر، ہم تو دعویٰ تو کرتے ہیں، ہمارے بہت سے نوجوان، لیکن آج اہمیت ہمارے اندر نہیں دے اسلام کی. آج ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اہمیت نہیں ہے. ہمیں کیا عبادت کرنا ہے، ہمیں دین اسلام کو کیسے بلند کرنا ہے، دین اسلام کو کیسے اس کا پرچار کرنا ہے، دین اسلام کے اوپر ہمیں عمل کیسے کرنا ہے، ہمیں اس کے اندر ہماری اہمیت کچھ نہیں ہے. ہم نے دین اسلام کے اندر رکھا ہوا ہے، سمجھ میں آیا تو کریں گے، نہیں آیا تو نہیں کریں گے. میرے دوست اور بھائی، کتنی افسوس کی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن جمعہ کا دن یہودیوں کو دیا تھا، یہودیوں نے اس کی قدر نہیں کی، تو اللہ نے ان یہودیوں کو اس سے گمراہ کیا، اس دین کو چھین لیا، عیسائیوں کو دیا. عیسائیوں نے بھی جمعہ کے دن کی قدر نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو عیسائیوں سے چھین لیا اور امت محمدیہ کو دین اسلام یہ جمعہ عطا کیا. کیوں؟ اور جمعہ یہ معمولی کی دن نہیں ہے. آج ہم کیا سمجھتے ہیں بھائی، بس جیسے عام دن بس جمعہ کے دن ہے، جمعہ کے دن میں ایک نماز ہوتی ہے، خطبہ جمعہ ہوتا ہے، بس اس میں کوئی شریک ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں واپس کر کے گناہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں. کتنی افسوس کی بات ہے معاشرے کے اندر آج ہم دعویٰ کرتے ہیں قرآن و سنت پر چلنے کا، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ مرنے کے وقت میں جنت ملنا چاہیے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں جب تک رہے اور نیا عوام کے ساتھ رہے، اور ہم شیر والا مچاتے ہیں. آج مسلمان پریشان ہے، جو حکومت ہے صحیح نہیں ہے، حکومت مسلمانوں کو برباد کر رہی ہے، حکومت ان کی ہے، غیروں کی حکومت ہے. میرے دوست اور بھائیوں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے اچھے مواقع عطا کیے، ہم اس کا کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں، آج ہم اللہ کی کتنی عبادت کر رہے ہیں. کون کہتا ہے کہ مسلمان پریشان ہے؟ کون کہتا ہے کہ مسلمان آج مسلمانوں کے خلاف حکومت ہے؟ کون کہتا ہے؟ اگر واقعی ہمارا عمل ہوتا،
اگر ہمارے اوپر ظلم ہوتا میرے دوست اور بھائیوں تو آج مساجد ویران نہیں کرتے، مساجد آج چھنی جا رہے ہیں، ہم جانے والا بچا رہے ہیں۔ دیکھو آج مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے جو عبادت خانے ہیں، جو مساجد ہیں، انہیں چھین لیا جا رہا ہے، ان پر تالے لگا دیے جا رہے ہیں۔ میرے دوست اور بھائیوں، جب ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا، ویران کرنا چھوڑ دیا، پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ہم پر ذلت مسرت مار دیں گے۔ بنی اسرائیل، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہودی قوم جو اللہ تعالیٰ کے امت محمدیہ کے آنے سے پہلے لالی قوم تھی، بہت خبردار ہے، دعویٰ کرتے تھے ہم اللہ کے چہتے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا، ہم جو کچھ کرے اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یہودیوں کے اوپر ایسے بادشاہ مسلط کر دیے جو بادشاہ ان کے گرجا عبادت خانوں کو برباد کر دیتے تھے، مسخار کر دیتے تھے، مسمار کر دیتے تھے، اور بنی اسرائیل کو مارتے تھے اور ان کے غلام اور ان کے مزدوروں کو غلام اور بچوں کو غلام بنا دیا کرتے تھے، ان کے لڑکوں کو مار دیتے تھے اور لڑکوں کو زندہ رکھتے تھے۔ آپ تاریخ بتائیے، لیکن مسلمان بھی آج انہیں یہودیوں کی نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ آج مسلمان کس ہیں؟ حالانکہ مجھے موضوع پر بات کرنا تھا، لیکن میں ایک حالات پر بیان کرنا چاہا موضوع کی ابتدا میں۔ میرے دوست اور بھائیو، آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے جمعہ۔ جمعہ امت مسلمہ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، ہم تمام مسلمانوں کے لیے کیا پیغام لے کر آتا ہے، انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے یوم جمعہ، جمعہ کے دن کی فضیلت سن لیجیے گا خواتین اسلام اور نوجوان دوستوں۔ جمعہ کا دن یہ بہت بڑا دن ہے، دنوں میں سے سب سے بہترین دن ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الایام، آپ نے فرمایا خیر الایام طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ سب سے پہلے جس دن سورج طلوع ہوا، سورج کی روشنی سے زمین پر گری، وہ کون سا دن تھا؟ سب سے بہترین دن وہ تھا جمعہ کا دن۔ یعنی جب سورج طلوع ہوا زمین کے اوپر، آسمان سے کہاں سے اٹھا سورج؟ ہم سب کو پتا ہے کہ سورج نکل رہا ہے، طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اس سے پہلے جس دن ہوا وہ جمعہ کا دن تھا۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ اور دنوں کا سردار دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 6 دن ایک ان کی الگ مقام ہے، لیکن ان 6 دنوں کا جو سردار جو دن ہے وہ کون ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ اب دیکھیے، اب کسی بھی تنظیم کا ممبر میں آتے ہیں، ان کا ایک سردار ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، تو ایسی جمعہ کا جو دن ہے نا وہ بھی صدر ہے، وہ بھی کیا؟ سردار ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث سید الایام جسے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یوم الجمعہ سید، بے شک جمعہ کا جو دن ہے وہ سردار ہے باقی دنوں کا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ نمبر 3، دنوں میں سے فضیلت والا دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن۔ دوسرے دن کی اتنی فضیلت نہیں جتنا جمعہ کے دن کی فضیلت ہے۔ فضل الایام، اس دن کو کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم افضل منه، کہ جو دن جتنے بھی دن ہوتے ہیں سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، ان سب میں زیادہ سب سے افضل وہ کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے میرے دوست اور بھائیوں، اور جامع صغیر کی روایت ہے۔ نمبر 4، دنوں میں سے عظمت والا دن، جسے ہم کہیں گے اعظم الایام، یعنی دنوں میں سب سے بڑا دن، یعنی عظمت والا دن کون سا دن ہے؟ یہی جمعہ کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَعْظَمُهَا عِندَ اللَّهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا دن کیسا ہے؟ سب سے عظمت والا دن جمعہ کا دن ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا بلکہ یہ اتنا عظمت والا دن ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ یہ عظمت والا دن ہے۔ اور یہ روایت جو ہے الجامع میں ماجہ کی روایت ہے میرے دوست اور بھائیوں۔ عید الفطر سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، ہم کو سب کو معلوم ہے، عید جو آتی ہے سال میں عید الفطر کی ایک مرتبہ آتی ہے۔ عید الاضحیٰ سال میں کتنا؟ ایک مرتبہ یہ بھی آتی ہے اس کی عید، لیکن جمعہ ہر ہفتے آتا ہے، لیکن اس کے باوجود جمعہ کی جو دن ہے وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ اس کی عظمت ہے۔
आज हम समझते हैं कि ईद की जो ईद है वो सबसे नहीं है, बल्कि ईद से भी है। हालांकि ईद का मकाम, एक फजीलत, ईद जो खुशी का दिन है वो उससे मकाम मर्तबा अलग है, लेकिन उससे भी बड़े अजमत वाला दिन कौन सा है? जुमा का दिन है, सुनिए का। और ये कहा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अफजल अज़्म वाला दिन जुमा का, यहाँ तक कि ईद उल अजहा और ईद उल फित्र से भी है। ईद का दिन आता है तो पूरी मस्जिदें भर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जुमा का दिन आता है तो क्या हाल है हमारा? आजान के वक्त हम कितने लोग मस्जिद में होते हैं? अभी आजान मिंबर पर जब इमाम बैठता है, उसके बैठने से पहले कितने लोग जुमा में जमा होते हैं? अफसोस की बात है, इसका हमें थोड़ा सा मुआयना करना है और अपने गिरबान में अपना मुंह डालकर हमें ये सोचना है कि हम कहाँ गफलत में कितने पड़े हुए हैं। आज हमें अल्लाह का डर नहीं, आज हम दावा करते हैं ईमान का, क्या हमारे अंदर में ईमान है? कहीं हमारा शुमार मुनाफिकों में से नहीं हो रहा है, कहीं हम मुनाफिकों में से नहीं हो चुके हैं? थोड़ा सा हमें तय करना चाहिए। ऐसी मेरे दोस्त भाई, नंबर 5, जुमा का जो दिन है वो ईद का दिन है मुसलमानों के लिए। जैसे साल में 2 मरतबा ईद होती है, ईद उल अजहा और ईद उल फित्र, ऐसे हफ्ते में ये हफ्ते वाली ईद है जुमा की। आज हम इसकी कोई अहमियत नहीं लेते, फिक्र नहीं लेते मेरे दोस्त भाइयों, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना हादा यौम जअलहुल्लाहु ईदल मुस्लिमीन, ये जो जुमा का दिन है अल्लाह ताला ने ये मुसलमानों के लिए ईद करार दिया है। ये अल जानी सगीर की रिवायत है मेरे दोस्त भाइयों। यानी जिस तरीके से साल में 2 ईदें आते हैं, तो ऐसे ही हफ्ते वाली ईद कौन सी? जुमा की ईद है। तो जिस तरीके से हम ईद के दिन पाबंदी के साथ ईदगाह जाते हैं, पाबंदी के साथ अल्लाह को याद करते हैं, दुआ करते हैं, खुशियां मनाते हैं, तो ऐसी मेरे दोस्त और भाइयों एक दिन आता है जुमा का, हफ्ते वाली ईद होती है, इसकी कोई अहमियत नहीं हमारे नजदीक। आज भी क्रिश्चियनों को उनके यहाँ पर कौन सा दिन है ईद का? इतवार का दिन, छुट्टी का। उस दिन वो अपने चर्च जाते हैं, अपना जो ईसाई जो उनका होता है इबादत खाना, वहां जाते हैं और खुद इबादत करते हैं। यहूदियों का हफ्ते का दिन, ऐसे गैरों का दिन, किसी का मंदिर बनाया गया है गैर हिंदुओं के अंदर, उसके अंदर वो जाकर कई घंटे अपने बुतों की इबादत करते हैं, जबकि उनकी इबादत का कोई मकसद नहीं, कोई इरादा नहीं, जबकि वो शिर्क कर रहे हैं। और हम मुसलमान, हमारे पास तौहीद की दौलत, तौहीद की नियमत हमारे पास आज बहुत बड़ी नियमत, और उसके बावजूद हम जुमा के लिए, कितनी अफसोस की बात है। अगर मैं बाद में मिंबर रसूल से कह रहा हूं कि फायदे के लिए कह रहा हूं, लोग कहेंगे भाई निशाना बनाए तंज कर, याद है कि तंज करना मेरा मकसद नहीं, ताना देना ये किसी आलिम में उनकी शान नहीं, सिर्फ और सिर्फ मकसद एक दिल में दे लेकर लोगों को इस्लाह करना है। गाफिली जो हमने हो चुके हैं, जो आज दिल हमारे अल्लाह की याद से गाफिल हो चुके हैं, उन्हें याद दिलाना है, उन्हें समझाना है कि अल्लाह की याद, अल्लाह को याद करो, वरना वो दिन नहीं कि हम जिस तरीके से ताकारी के जमाने में मुसलमानों के खून एक पानी तरह बहा दिए गए थे, मुसलमानों को रोक दिया गया था, मुसलमानों को इतना मारा गया था, इतना कत्लेआम हुआ था कि जो पानी थे, तालाब वगैरह के जो जमीन, उसके जो नाले थे, वो मुसलमानों के खून से सिर्फ हो गए। ऐसा दौर नहीं आना चाहिए मेरे दोस्त और भाइयों। आज जरूरत हमारी यही कल ये करे। आज देखिए अभी हमारे जुमा में 3 लोग आए, एक हदीस बताता हूँ जो बहुत बड़ी फजीलत वाली है और बहुत अहम हदीस है हमारे लिए, हम सब के लिए हदीस है। फरिश्तों के इस्तेमाल का दिन, आज जो जुमा का दिन होता है, कुछ घंटा, कुछ देर फरिश्ते क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं हम लोगों का। फरिश्ते कौन है? ये अल्लाह ताला की एक मखलूक है, मुकर्रम मखलूक, जो नाफरमानी नहीं करती, जो अल्लाह ताला की इबादत में है। अल्लाह जो उन्हें हुक्म देता है उसे बजा लाते हैं, अल्लाह जिनसे मना करता है वो उससे रुक जाते हैं। ठीक है, अब देखिए फरिश्ते हम लोग का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, हदीस देखते हैं, सुनिएगा ये हदीस, और कितने ऐसे लोग हैं जिनका फरिश्ते ने इस्तेमाल किया, इस हदीस समझ में आएगा। कितने ऐसे लोग हैं महरूम, कितने ऐसे महरूम लोग हैं जिनका आज फरिश्ते ने इस्तेमाल नहीं किया और बल्कि वैसे ही आ गए, फरिश्ते ने उनका नाम भी नहीं लिखा। आइए एक हदीस देखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या फरमाते सुनिएगा, तक़अदुल मलाइकतु यौमल जुमाती, कि फरिश्ते जो है वो जुमा के दिन मस्जिद के बाहर बैठ जाते हैं। अला अबवाबिल मसाजिद, मस्जिद के दरवाजे पर क्या होते हैं? बैठ जाते हैं। मस्जिद के दरवाजे होते हैं, हर मस्जिद के दरवाजे पर फरिश्ते बैठ जाते हैं। माहिमुस्सुहुफ, उनके पास उनके साथ सहीफे रजिस्टर होते हैं लिखने के लिए। यक्तुबून अन्नास,
और वो लोगों के यक्तुबुन्नास वो लोगों के नाम लिखते रहते हैं, जो पहले आया कौन कौन आ रहा है मस्जिद में लिखते रहते हैं। फइज़ा खरजल इमाम, जब इमाम आता है, इमाम मिंबर पे बैठ जाता है, तो ये तो क्या करते मालूम, रजिस्टर को बंद कर देते हैं और उसके बाद मस्जिद में इमाम का खुतबा सुनने लगते हैं। इमाम आने के बाद, मिंबर पे बैठने के बाद, याद रखिए फरिश्ते क्या करेंगे, इस्तेक़बाल को बंद कर दिया, जो रजिस्टर में रखा था अपने साथ उसे लपेट दिया, बंद कर दिया, और ये भी इमाम का खुतबा सुनने लगे। और उसके बाद जितने भी लोग आएंगे, ना तो उनका इस्तेक़बाल होगा और ना उनका नाम सहीफे में रजिस्टर के अंदर दर्ज किया जाएगा। और ये जो रिवायत मैंने बयान किया, सही तरगीब और तरहीब किए, और इसके अलावा और भी रिवायतें मौजूद हैं। अब बताइए, हमने कितने लोग थे आजान से पहले इमाम के मिंबर पर बैठने से, चलने से पहले कितने लोग मस्जिद में थे, तो भला बताइए। सिर्फ उनका इस्तेक़बाल हुआ, और बाकी महरूम लोग जो इमाम के मिंबर बैठने के बाद आते हैं। कितने बार कहा जाए, क्या हमारे पास 15 मिनट का वक्त नहीं है, क्या हमारे पास 20 मिनट पहले हम नहीं आ सकते? अफसोस है ऐसे लोगों के ऊपर, अफसोस है ऐसे लोगों के ऊपर कि जो ट्रेन के छूटने के वजह से एक घंटा पहले स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। अफसोस है ऐसे लोगों के लिए जो दुनिया के खातिर तमाम वक्त अपना खर्च कर देते हैं, लेकिन अल्लाह के खातिर कुछ वक्त नहीं आते। एक हफ्ते में एक दिन आता है, 1 घंटा। खुतबा कितनी देर हो रहा है हमारे दरमियान? 1-1.25 घंटे में पूरी नमाज भी हो जा रही है। क्या 1.25-1.5 घंटा हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है? क्या इतने मुस्लिम और अल्लाह की याद से इतने गाफिल हो चुके हैं कि हमारे दिल आज हमें मरामत नहीं कर रहे? आज हमारा ज़मीर इतना मर चुका है, हमारा ज़मीर कि ज़मीर आज हम पर मरामत नहीं कर रहा है। क्या हम अल्लाह के आज़ाद को चैलेंज कर रहे हैं? याद रखिए, जो भी कौम अल्लाह को भिड़ा देगी, अल्लाह के दीन को अहमियत नहीं देगी, तो अल्लाह ताला उन पर अपना अज़ाब भेज देगा। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है मिंबर रसूल से कि आज कितने लोगों का फरिश्ते इस्तेक़बाल किया, सोच लीजिएगा। अगर मैं इशारा करूं तो आप, बस इशारा दे रहा हूं, कितने ऐसे लोग हैं बताइए आज जिसका फरिश्ते इस्तेक़बाल नहीं किया? फरिश्ते नाम नमाज के लिए तो हम आए, लेकिन फरिश्तों ने उसका नाम रजिस्टर में नहीं लिखा। अजान से पहले, यानी इमाम के मिंबर में बैठने से पहले जो लोग आए, बस उन्हीं का नाम दर्ज किया जाता है और फरिश्ते उन्हीं को इस्तेक़बाल करते हैं। मेरे दोस्त और भाइयों, बहुत अफसोस की बात है, आज हमारे माशरे में आज इतनी बुराइयां हो चुकी हैं। एक दिन में 1 घंटा 1.25 घंटा हम अल्लाह तबारक व तआला की याद के लिए फरिश्ते जिसका इस्तेक़बाल करते हैं। मेरे दोस्त और भाइयों, थोड़ा सा शर्म अपनी हमको आना चाहिए, ज़मीर पे अपना ज़मीर गवाही क्यों नहीं देता है? याद रखिए, अल्लाह ताला हमारी इबादत का मोहताज है, अल्लाह ताला इंसानों का मोहताज है। क्या अल्लाह ताला किसका मोहताज है? अल्लाह की जितने इंसान है ना, उससे कई ज्यादा फरिश्ते हैं। याद रखिए, 7 आसमान में फरिश्ते हैं, जमीन में है, हर जगह अल्लाह ने फरिश्ते फैला दिए। इंसान कहां बसते हैं? सिर्फ जमीन पर बसते हैं ना, लेकिन फरिश्तों को अल्लाह ने कहां कहां नहीं बनाया? जिन्नों को अल्लाह ने बनाया, वो छोड़े परिंदों को, चरिंदों को, कीड़े मकोड़ों को, तमाम की तमाम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तस्बीह बयान कर रहे हैं, हमदो सना बयान कर रहे हैं। फरिश्ते इतने ज्यादा कि हमारे साथ 2 फरिश्ते लगे, एक इंसान के साथ 2 फरिश्ते। अब वो तो छोड़ दो, वो तो इंसान कितने होंगे, फरिश्ते कितने होंगे? वो तो छोड़ दो जो आसमान में अल्लाह की इबादत कितने कर रहे हैं, वो छोड़ दो जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं, कितने फरिश्ते होंगे जो अल्लाह की इबादत में। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है कि अल्लाह कहता है, जाओ फरिश्ते जाओ, मस्जिद के दरवाजे में बैठे मेरे जो बंदे आएंगे उनका इस्तेमाल करो, उनका नाम लिखो। और इमाम कौन भी इंसान है, और उसके बाद इमाम का खुतबा सुनो। और आज हम अल्लाह को क्या अहमियत दे रहे हैं? आज हम अल्लाह को कितनी अहमियत देते हैं? जो अल्लाह ताला, आज हम इतने, एक बात कहे तो मैं, बहुत शर्म की बात है, इतने हम गिर चुके, जमीन हमारा इतना गिर चुका है, हम दुनिया वालों को एक नेता को खुश करने के लिए अपनी गैरत बेच देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को खुश करने के लिए हम कहां जा रहे हैं? अल्लाह ताला बंदों के इस्तेक़बाल के लिए फरिश्तों को भेज देता है, लेकिन हमारे अंदर वो जुर्रत पैदा नहीं होती। खैर, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 7, बख्शिश का ये दिन है। आज का जो दिन है ना, मग़फ़िरत का दिन है। किस तरीके से? आइए मैं आपको बताता हूं। हदीस की रूह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तवद्दा फअहसनल वुदुआ, जो बंदा वुज़ू करता है, अच्छा वुज़ू करता है, बेहतरीन वुज़ू, एक दिल में अच्छा वुज़ू का मतलब क्या, लोगों ने समझा ही नहीं है। अच्छा वुज़ू मतलब ये है, क्या मतलब कि बहुत पानी बहाना, क्या मतलब कि जितना हो सके बार बार चेहरे धोना नहीं। अच्छे वुज़ू मतलब सुन्नत सा वुज़ू कीजिए, और जब आप वुज़ू कर रहे हैं ना, आप महसूस कीजिए दिल लगाकर के
میں جو ہاتھ دھو رہا ہوں ہاتھ سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ دھل جا رہے ہیں. میں جو کلی کر رہا ہوں کلی کرنے کے ذریعے جو بھی میرے منہ سے گناہ ہوئے وہ گناہ جھل جا رہے ہیں. میں چہرہ دھو رہا ہوں تو میرے آنکھوں سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں وہ آنکھوں سے گناہ کیا دھل جا رہے ہیں. ہاتھ سے جو بھی گناہ ہوئے پیر سے جو بھی گناہ ہوئے ہر عضو دھوتے ہوئے آپ یہ دل میں محسوس کیجئے جو میں عضو دھو رہا ہوں اس کی وجہ سے وہاں کے گناہ کیا ہو رہے ہیں دھل جا رہے ہیں. یہ اچھا وضو ہوتا ہے. چلیے حدیث دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ثم اتى الجمعہ, اس کے بعد اچھا وضو کرتا ہے گھر سے, اس کے بعد جمعہ کے لیے مسجد میں آتا ہے. آنے کے بعد فاستمع, خاموشی سے خطبہ سنتا ہے, وانصت, خاموش بیٹھا رہتا ہے, غور سے خطبہ سنتا ہے امام کا, اس کے اندر لہو نہیں کرتا, بات نہیں کرتا, کسی کو ڈھکلتا نہیں ہے, کسی کو پریشان نہیں کرتا, ہاں خاموشی سے بیٹھ کے خطبہ سنتا ہے. تو غفر له ما بینه وبین الجمعۃ, اس پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے درمیان جو بھی گناہ اس سے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی مغفرت کر دیتی. کتنی بڑی فضیلت. اور یہ بات صحیح مسلم کی روایت ہے, یعنی صحیح روایت ہے میرے دوست اور بھائیوں. یہ ہو گئی ایک حدیث. اس طریقے سے نمبر 8 قبر سے نجات. یاد رکھیے قبر کا عذاب بہت سخت ہے, قبر میں عذاب ہونے والا ہم سب کا ایمان ہے, لیکن وہ بندہ جس کی موت جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن ہو گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے. کون؟ وہ واحد وہ مسلمان جس کی موت کس دن ہوتی ہے, جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو ہوتی ہے. آئیے حدیث, اس کو ہم جمعہ کے دن کا یوم کفارہ بھی کہہ سکتے ہیں. یوم کفارہ یعنی گناہوں کو مٹانے والا دن, گناہوں کو مٹانے والا دن ہم کہہ سکتے ہیں. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ, کوئی بندے مسلمان, کوئی بندے مومن جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن مر جاتا ہے, اس کی موت آ جاتی ہے, تو کیا الا وقاه الله فتنة القبر, تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عذاب قبر سے, قبر کی فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں, بچا لیتے ہیں. اور یہ روایت صحیح ترغیب اور ترہیب کی روایت ہے. یاد رکھیے لیکن کون مرا؟ کوئی مشرک مرنے سے نہیں, کوئی لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والا نہیں. یاد رکھیے بندے مومن موحد جس کے اندر توحید تھی, جو توحید پرست تھا وہ مر گیا. حالانکہ کفار مر گیا جمعہ کے دن جمعہ کی رات کو, کیا ان کو بھی نہیں, بلکہ موحد کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے, قبر کی فتنے سے محفوظ رکھے گا. خیر, قیامت کے دن برپا ہونے کا دن ہے. قیامت جو ہے نا, قیامت کا دن کس دن ہوگا؟ وہ بھی جمعہ کے دن ہوگا. ہاں سوچئے, کبھی ہم جمعہ سے اتنے غافل ہیں, کبھی اللہ کی طرف سے قیامت قریب آ سکتی نزدیک ہے. کچھ نشانیاں ہیں, نشانیاں پورے ہوتے جا رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی نشانیاں, بڑی نشانیاں کبھی آنا ہے, وہ نشانیاں غیر پورے ہو رہے ہیں. قیامت کے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں ان میں سے کتنے سارے پیشن گوئیاں ہوئے ہیں, ہونے باقی ہیں. تھوڑا سوچو میرے دوست اور بھائیوں, اگر قیامت برپا ہو جائے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں کہ قیامت کے لیے جمعے کا جو دن ہے, قیامت کے اندھیروں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا. یاد رکھیے اللہ کہتا ہے ان اللہ یبعث الایام یوم القیامہ علی حیاتیہ. بہت بہترین حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن, اچھا دن 7 دن ہے, ان 7 دنوں کو کیا عطا کرے گا؟ جسم عطا کرے گا, ایک شکل عطا کرے گا. تمام دن جو ہے نا ایک ایک شکل میں ہوں گے, لیکن جمعہ جو ہوگا نا, جمعہ ایک چمکتے دار سیارے کی مانند ہوگا. سیارہ سمجھ رہے نا, سیارہ کسے کہتے ہیں؟ ایک چمکدار سیارے طرح ہوگا, اور ایسا چمکدار سیارہ ہوگا کہ باقی جو 6 دن ہے اس میں سامنے مان پڑ جائے گی, پھیکے پڑ جائے گی. اور مثال دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جو حدیث ہے نا مستدرک کی حدیث ہے جو صحیح مسلم شرط میں بنائی گئی ہے, وہ کتاب میں حدیث آئے ہیں مستدرک کے جو مصنف ہیں وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے, جب وہ اپنی دلہن کے ساتھ جاتی ہے ایک روشنی کی جاتی ہے, اور وہ روشنی میں دوسرے تمام لوگ چلتے ہیں پیچھے پیچھے. آپ دیکھتے ہیں نا آج تو خیر ماحول ختم ہوا, آج تو ہمارا جو ماحول ہے نا رات کو دانا عمل ہے. پہلے دلہن کو کوئی اور دیکھے, سجایا جاتا ہے تو کس کے لیے سجایا جا رہا ہے؟ غیروں کے لیے, کیمرہ مین کے لیے, اور نہ جانے اہل غیر نقطے خیروں کے لیے, عوام کے لیے. دلہن کو نہیں سجایا جا رہا ہے. یہ کہنا پڑا, یہ بات اتنی ہمارا معاشرہ اتنا گر چکا ہے کہ معاشرے کے اندر آج یہ نہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, آج معاشرے کے اندر اللہ کا ڈر نہیں رہا ہمارے اندر. تو یاد رکھیے حدیث کے اندر جو بات ملتی ہے نا, دلہن کو ایسے سجایا جاتا ہے جو چمکتی ہوئی رات, کس کے لیے؟ دلہن کے لیے. اور جب دلہا دلہن جاتے ہیں تو جب روشنی کی جاتی ہے تو دوسرے لوگ اس میں چلتے ہیں. تو ایسی جمعہ کا جو دن ہوگا نا تو اس کے لیے چمکدار سیارے میں اسے شکل دی جائے گی, اور باقی جو دوسرے ایام ہوں گے وہ ایام کیا ہیں؟ وہ ایام ایک مان پڑ جائیں گے. خیر چلیے اب آگے حدیث میں ہم دیکھتے ہیں میرے دوست اور بھائیوں. یہ بات ہو گئی نمبر
10 जन्नत में दाखिल होने का दिन है। जुमा का जो दिन है ना, ये है। आदम अलैहिस्सलाम कब पैदा किए गए? जुमा में पैदा किए। हदीस में आता है, जिससे मुस्लिम की हदीस है, बहुत लंबी हदीस है, सिर्फ तर्जुमा करता हूँ। आप फरमाते हैं ये ऐसा दिन है जिस दिन देखिए सबसे पहले सूरज तुलू हुआ, जब सूरज तुलू हुआ जुमा का दिन था, पहली फजीलत जुमा के दिन की। दूसरा, इस दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। तीसरा, इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया गया। चौथा, इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल के दुनिया में फेंक दिया गया। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की गई और इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। इसी दिन क़यामत कायम होगी। इसी दिन सूरज फूका जाएगा क़यामत के लिए, और दोबारा जो मरने के बाद जो दोबारा जिंदा किया जाता, तो इसी दिन जुमा के दिन ही दोबारा सूरज फूक दिया जाएगा। मेरे दोस्त और भाइयों, ये बहुत सारी रिवायतें मिलता है, लेकिन आज हम इसकी कोई फजीलत समझते हैं मेरे दोस्त और भाइयों। आइए, ये तो मैंने फजीलत बयान किया, वक्त होता जा रहा है। यौम जुमा का पैगाम क्या है? 5 पैगाम इंशाअल्लाह मुख्तसर बयान करूंगा। 5 पैगाम मेरे लिए और आपके लिए। यौम जुमा का पहला पैगाम मेरे और आपके लिए क्या है? नाम, मेरे आपके नाम। देखिए, इस दिन सबसे पहले हमें इसकी जुमा के दिन की पाबंदी करना। कैसे पाबंदी करना है? नंबर 1, नमाज बाजमात की अदायगी। अल्लाह कहता है कुरान करीम में, अल्लाह हुक्म दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा। अल्लाह कहता है ईमान वालों, जब जुमा के लिए तुम्हें पुकारा जाए तो क्या करो? जुमा के दिन पुकारा जाए तो अपने कारोबार को, खरीदे को छोड़ दो और दौड़ो जुमा की जानिब, दौड़ो मस्जिद की जानिब, अल्लाह की याद की जानिब। अगर तुम ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है अगर तुम जानते हो, और अगर नहीं हम ऐसा करेंगे, जहां जो बेहतर चीज हो सकती है वो हमारे लिए बहुत ही बुरी होगी। मेरे दोस्त और भाइयों, जुमा का जो दिन है ये बेहतर है किनके लिए? उनके लिए जब जुमा का वक्त होता है तो अपने कारोबार को, अपने खरीदों को छोड़ देते हैं और दौड़ते हैं अल्लाह की याद की जानिब। अब कितने ऐसे लोग हैं जो जुमा के लिए मस्जिद में जल्द अज जल्द इमाम के मिंबर पे बैठने से पहले आने वाले, कितने ऐसे लोग हैं जो अपने कारोबार को छोड़कर आ रहे हैं। मेरे दोस्त और भाइयों, नंबर 2, बहुत बड़ी फजीलत का ये जरिया है नमाज जो अदा करना है ना। खास तौर पे आज मैं पूछना चाहता हूं, हम जुमा की नमाज के लिए कम से कम 100 लोग इस मस्जिद में आ रहे हैं, लेकिन फजर नमाज कितनी पढ़ रहे हैं? जुमा की फजर नमाज खास तौर पर रोज तो पढ़ना ही है, लेकिन जब जुमा की बात आई है तो जुमा के दिन की जो नमाज है उसकी एक अलग फजीलत है। मेरे दोस्त और भाइयों, वो भी बाजमा अदा करना। आप फरमाते हैं आप नमाजों में, बंदे की तमाम नमाजों में सबसे अफजल जो नमाज उसके लिए है वो है जुमा के दिन की फजर नमाज, जो उसने बाजमात अदा की, तो ये उसके लिए बहुत फजीलत दिन होगा। और ये अल-जामी सहीह की भी रिवायत है। और बता दूं आपको, मैं जुमा के दिन की फजर नमाज की बात आई है, एक दो हदीस बयान करता हूँ, फिर बयान करता हूँ। देखिए, जुमा की नमाज कितने 2 रकात होते हैं, और फजर की जो फर्ज नमाज होती है वो भी 2 रकात होती है। सुन्नत उसकी अहमियत है, वो भी पढ़ना है, लेकिन जो फर्ज है वो 2 रकातें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रकातुल फज्र खैरुम मिन दुनिया मा फीहा, कि फजर की 2 रकात नमाज दुनिया हुआ फीहा, यानी दुनिया और दुनिया में जो कुछ है वो सबसे ज्यादा, इससे कई ज्यादा बेहतर है। अब देखिए, हम दुनिया कमाने के लिए अपने आप को खपा रहे हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को मिटा रहे हैं, जबकि सिर्फ फजर की 2 रकात नमाज फजर की सिर्फ 2 रकात मेरे दोस्त और भाइयों, दुनिया और दुनिया में जो कुछ अल्लाह ने हमें तरफ दुनिया में ये रंग, ये बिरंगी, ये बेहतर नियमत नक्शो निगार, ये इतने सारे सामान, उन तमाम से बेहतर ये सिर्फ फजर की 2 रकात है मेरे दोस्त और भाइयों। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। और नंबर 3, ये हिफाजत खुदावंदी का जरिया है। अगर कोई बंदा फजर नमाज अदा करता है ना, तो अल्लाह ताला को जिम्मे, जैसे कि हदीस के अंदर आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्ला सुबह कि जो शख्स सुबह की नमाज अदा करता है तो वो अल्लाह ताला के जिम्मे में है, अल्लाह ताला उसको अपने जिम्मे में अपनी जिम्मेदारी में ले लेता है। सही मुस्लिम की रिवायत है। आज हम माशरे में रहते हैं, मुल्क में रहते हैं, तो हम चाहते हैं हमारी जिम्मेदारी ले ले, हमारी हिफाजत करे, हमारी कोई सिक्योरिटी करे। मेरे दोस्त, जब अल्लाह कह रहा है, जब नबी से इस बात बयान की गई कि जो भी फजर नमाज अदा करेगा अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे। मेरे दोस्त भाई, और ऐसी नंबर 4, मोहब्बत खुदावंदी का जरिया। हम तमाम लोग चाहते हैं हम अल्लाह के महबूब बंदे बन जाए, क्या हम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करे, अल्लाह ताला हमारा जिक्र, हमारी तारीफ फरिश्तों के सामने करे।
आइए दो आप सलाम फरमाते मुस्लिम अहमद की रिवायत है, दो किस्म के लोग जिनसे अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला फजर से उनका नाम लेता, कौन कौन है? फरिश्तों से कहता है दो लोग। एक हुआ आदमी जिसने फजर नमाज के लिए घर से निकला। कहां से घर से निकला? अपने बिस्तर को छोड़ के, अपने अहल वायाल, अपने महल्ले को छोड़कर मस्जिद में आता है। अल्लाह कहता है मेरे फरिश्ते देखो मेरे बंदे को, ये बंदा कितना प्यारा बंदा है जो मेरे खौफ से डरकर, जो मेरे आजाद से डरकर और मेरे नियामतों के शौक में अपने बिस्तर को, अपने अहल वायाल को छोड़कर कहां मस्जिद में आ रहा है नमाज अदा करने के लिए, मेरे खातिर, मेरे नियामतों के शौक में। और दूसरा कौन बंदा? वो बंदा जो अल्लाह ताला की जिहाद, जो अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने के लिए निकलता है। मुस्लिम अहमद की रिवायत है। ऐसी नंबर 5, फरिश्तों की दुआ का जरिया। मेरे दोस्त और भाई, आज हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्या कहते हैं? भाई मेरे लिए दुआ करना। हम किसी बुजुर्ग से भाई मेरे लिए दुआ करना, हम इमाम साहब से करें, मौलाना से करें, हमारे लिए दुआ करना, हम परेशान हैं, हमारी दुआ में याद रखिए। मेरे दोस्त और भाइयों, क्या हम अल्लाह ताला के जो बंदे फरिश्ते हैं जो कि मासूम हैं, गुनाह नहीं करते हैं, क्या हम उनकी दुआ नहीं चाहते? वो भी हमारी दुआ करेंगे किस तरीके से? एक इंसान यार दुआ की दरखास्त कितनी बार दुआ करेगा आपके लिए? 2 मिनट 2 जुमले में दुआ करेगा बस, कि अल्लाह ताला अगर दुआ करे कोई कि फला बंदा मुझसे दुआ की दरखास्त किया है, ए अल्लाह ताला तू उसके जायज तमन्ना को पूरा फरमा, उसके गुनाह को माफ फरमा, बस इतनी दुआ, 2 जुमले 3 जुमले कहेगा। फरिश्ते लगातार, और एक फरिश्ता नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 फरिश्ते उसके लिए दुआ करेंगे। मेरे दोस्त और भाइयों, आइए देखते हैं। मनसर फजर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा फजर नमाज अदा करता है, सुन्नत जैसे फी मुसल्ला, और जहां नमाज ने अदा किया उसी जगह बैठे रहता है, तो सल्लत अलैहि मलाइकतु सलातुहुम अलैहि, तो फरिश्ते उसमें दुआ करते हैं और उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं सुनिएगा, बार बार लगातार, जब तक वो बंदा अगर आधा घंटा 15 मिनट बैठा है, लगातार कई फरिश्ते, हदीस में जो जरा गलत है फरिश्तों का, कितने सारे फरिश्ते दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? अल्लाहुम्मा अग़फिरना, ए अल्लाह ताला तू इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाहुम्मा रहम, ए अल्लाह ताला तू इस बंदे में रहम फरमा। मुस्लिम अहमद की रिवायत है। देखिए, जब फरिश्ते इतने सारे दुआ करेंगे मग़फ़िरत के, रहम के लिए, तो क्या हम कितने बड़े कामयाब होने वाले हैं, हम हमारा दर्जा कितना बड़ा हो गया मेरे दोस्त और भाइयों। नंबर 6, रात के क़याम के सवाब का जरिया है। अगर आप रोज फजर नमाज पढ़ते हैं, पढ़िए, लेकिन जुमा के दिन की फजर नमाज पढ़ोगे, खास तौर पे, बल्कि पूरी नमाज अदा करना है, लेकिन जुमा की नमाज के दिन, जुमा की जो दिन है उस दिन की फजर नमाज, कितना बड़ा सवाब है, और पूरे रात का सवाब है, रात के क़याम का। आपने सिर्फ देर रात अदा किया नमाज, आई नहीं, सिर्फ फजर में पढ़ा होगा सुन्नत, देर रात फर्ज पढ़ लिया इमाम की जमात के साथ, लेकिन उसका सवाब कितना है? उसका सवाब पूरी रात नमाज पढ़े जैसा है। देखिए, फजर नमाज कितने मिनट की होती है? मुश्किल से 15 मिनट नमाज होती है। चलिए आधा घंटा मान लीजिए, अब उठे, वुज़ू किया, दरगाह सुन्नत पढ़ लिया, हाँ, नमाज हो गई, थोड़ा जिक्र किया अल्लाह ताला का, अब आधा घंटा आपने अल्लाह की मस्जिद में लगा दिया, अल्लाह की याद में लगा दिया, लेकिन बंदे के सवाब पूरी रात का, रात कितनी लंबी होती है, शाह जमा से जोड़िए, लगभग 7-8 घंटे की रात होती है, इतनी पूरी रात का सवाब मेरे दोस्त और भाई। आइए हम हदीस देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं, वो मन सल्ला सुबह की जमात में फकअन्नमा सल्लल्लाहु अलैहि, आप सल्लल्लाहु फरमाया, जो बंदा जमात के साथ, याद रखिए शर्त है जमात के साथ, जो बंदा नमाज फज्र जमात के साथ अदा करता है, तो उसके लिए पूरी रात की नमाज का सवाब लिखा जाता है, यानी लगभग 7-8 घंटे उसने अल्लाह की इबादत की नमाज पढ़ा, हालांकि हम आधा घंटे में नमाज नहीं पढ़ रहे, 15 मिनट 14 मिनट फजर नमाज हो रही, 3-4 मिनट में लोगों सुन्नत हो रहे हैं, कुछ अल्लाह का जिक्र किया, तो आधे घंटे की हम इबादत करेंगे अल्लाह ताला की, तो अल्लाह ताला पूरे रात के नमाज का सवाब क्या करेंगे। सही मुस्लिम की ये रिवायत है मेरे दोस्त भाइयों, और जब सही बुखारी या सही मुस्लिम रिवायत आती है, वहां पर हमें आंख बंद करके हदीस पर भरोसा करना है, इसलिए कि जितने भी सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस आए वो तमाम क्या है, सही है, मोतबर है, और एतमाद के बिल्कुल लायक है, उन पर कोई शक शुबाही करने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त भाइयों। नंबर 8, हज उम्रे के सवाब का जरिया है। देखिए मेरे दोस्त भाइयों, हम उम्रा, बहुत सारे हमारे अहबाब जो उम्रा नहीं कर सकते, हज नहीं कर सकते हैं, हज तो उम्रा मान लो एक बार किया तो बार बार नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त और भाइयों, आप रोजाना चाहते हैं कि मैं उम्रे का सवाब पाऊं, चाहते हैं कि मैं उम्रे का, हज का सवाब पाऊं, तो हमें कुछ बड़ा अमल नहीं करना है, बिल्कुल ये आसान वाला अमल है, और बहुत ही आसानी वाला, मुश्किल वाला अमल नहीं है। क्या है अमल? आइए देखते हैं मेरे दोस्त और भाइयों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
कि मन सल्लत सुबह, जो शख्स सुबह की नमाज पढ़ा, फजर नमाज पढ़ा, सुन्ना क़ाअद फी मजलिसी, और जहां उसने नमाज पढ़ा है उसी जगह बैठा रहा और सुन्ना ज़िक्रुल्लाह, और अल्लाह का जिक्र करता रहा यहां तक कि सूरज शुरू हो गया। और सूरज शुरू होने के बाद जो सूरज बुलंद हुआ, यानी लगभग 12-15 मिनट के बाद उसने सिर्फ 2 रकात नमाज अदा की, यानी फजर की नमाज के बाद, अल्लाह का जिक्र करने के बाद, सूरज शुरू होने के बाद इशराक की 2 रकात नमाज अदा किया, तो उसका कैसा है सवाब? गोया उसको सवाब जो दिया जाता है हज उम्रे सवाब। हज का सवाब कितना बड़ा है आपको मालूम होना चाहिए, कितना सवाब है हज का, उम्रे का कितना बड़ा सवाब है। तो एक बंदे मोमिन रोजाना सवाब पा सकता है। मेरे दोस्त और भाइयों, हम नमाज के लिए आते हैं, मुश्किल से 20 से 25 मिनट के बाद सूरज शुरू हो जाता है नमाज के बाद। उसके बाद 15 मिनट के बाद आप सिर्फ देर पर नमाज अदा की, अल्लाह का जिक्र करते करते बैठे। अच्छा, अल्लाह का जिक्र करना क्या मुश्किल जुबान के ऊपर? सुबहान अल्लाह कहिए। सुबह के जो अज़कार है वो भी फायदा, ऐसा नहीं फायदा नहीं है, बल्कि अगर अज़कार करेंगे तो आपको कोई अचानक से कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, कोई आपको की तकलीफ, शैतान आप पर काबू नहीं पाएगा, शैतान आपके दिल पर हुकूमत नहीं कर पाएगा। अल्लाह ताला शैतान को आपसे दूर कर देंगे, आपकी निगरानी में अल्लाह का फरिश्ता मुकर्रर कर देंगे, यानी हर मामले में हमारा फायदा ही फायदा है। लेकिन आज के नौजवान, हमारे बुजुर्ग, आज हमारे खवातीन इस्लाम आज इसको नहीं समझ पाते, दुनिया के फायदे समझ रहे हैं। अगर कोई कंपनी ने ऑफर देती है, भाई तुम 2 घंटे काम कीजिए, आपको ये चीज दी जाएगी, आपके लिए ये सहूलत, आपके लिए ये बोनस दी जाएगा, तो हम कितना खुश होते हैं। और अल्लाह ताला जो सातों आसमानों का रब है, जो तमाम जहानों का रब है, जिसका वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। याद रखिए, बंदे का वादा झूठा हो सकता है। अरे बंदे धोखा दे सकते हैं, अल्लाह ताला जो वादा किया है उसका वादा कभी भी झूठा नहीं है, हर वादा सच्चा है। अल्लाह की हर बात सच्ची है, अल्लाह की बात से किसी और की बात सच्ची नहीं हो सकती है। लेकिन आज हमारे ईमान यकीन कितना है मेरे दोस्त और भाइयों। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 8, क़यामत के अंधेरों से नजात का जरिया होगा। याद रखिए मेरे दोस्त और भाइयों, क़यामत में अंधेरा होगा, हमारे पास रोशनी नहीं होगी, लेकिन याद रखिए जो लोग फजर की नमाज में अंधेरे में घर से चलकर मस्जिद की जानिब आते हैं अंधेरों के अंदर, तो आप फरमाते हैं, सुनन तुरमे की रिवायत है, आप फरमाते हैं बशर मशाइना की मुल्तामा और क़यामा, आप फरमाते हैं कि जो लोग रात के अंधेरे में मस्जिद की जानिब चलकर आने वाले फजर की नमाज के लिए, उनके लिए खुशखबरी दे दो, ऐसी क़यामत के दिन मुकम्मल रोशनी की खुशखबरी दे दो। सुनन तुरमे की रिवायत है मेरे दोस्त और भाइयों। इस तरीके से मैं आपको और बता दूं आगे कि जहन्नम से नजात का जरिया है जो लोग फजर नमाज अदा करते हैं ना, पाबंदी के साथ, जमात के साथ, तो जहन्नम की आग इन्हें नहीं छुएगी। लेकिन नमाज छोड़ेंगे तो फिर हम जहन्नम के हकदार बन जाएंगे, जहन्नम के मुस्तहिक बन जाएंगे। आइए हदीस देखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लन यलिजन्ना, आपने फरमाया कि वो बंदे को जहन्नम की आग नहीं छुएगी जिस बंदे ने सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरूब होने से पहले नमाजों की 2 नमाजों की पाबंदी की होगी, यानी फजर की नमाज और असर की नमाज। ये 2 नमाजें ऐसी जो इंसान से खास तौर पर छोड़ी जाती हैं। असर की नमाज घूमने फिरने में, कारोबार में, टहलने में, मसरूफियत की वजह से, और फजर की नमाज नींद की, बिस्तर की वजह से खास तौर पर हमारी दिमाग छूटती है। इसलिए आप सल्लम ने इसकी अहमियत तो उजागर करते फरमाया कि जो बंदा इन 2 नमाजों की पाबंदी करेगा वो जहन्नम में नहीं दाखिल होगा। मेरे दोस्त और भाइयों, चलिए यौम जुमा का दूसरा पैगाम मेरे और आपके लिए क्या है? मेरे दोस्त और भाइयों, पैगाम जो लेकर आता जुमा का मेरे और आपके लिए वो है, आज हम कुरान करीम तिलावत करना, खास तौर पर सूरह कहफ की। कितने ऐसे अहबाब हैं मेरे दरमियान जिसमें जो बैठे हुए हैं जो सूरह कहफ अपने अपने घर से या मस्जिद में आकर पढ़ा होगा। थोड़ा सोचिए मेरे दोस्त और भाइयों, कोई हम इसकी अहमियत नहीं देते, क्यों? कितने मेरे माए और बहनें हैं, इज्जतदार हमारे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज कुरान करीम की तिलावत की और सूरह कहफ को पढ़ा। मेरे दोस्त और भाइयों, दज्जाल का फितना होगा, बहुत बड़ा फितना होगा। उसके फितने से बचना आम लोगों की बात नहीं होगी। फितने से कौन बचेंगे? आइए देखते हैं हम जुमा का जो पैगाम हमारे लेकर आया है वो है क्या है। देखिए, अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन हफिज़ अशर आयत मिन अव्वल सूरह कहफ अस्ल में दज्जाल। सही मुस्लिम की रिवायत है, जो शख्स सूरह कहफ की शुरू की 10 आयत याद करता है, सूरह कहफ की 10 आयत, मुश्किल से एक सफा, एक रुकू होगा, मुश्किल से एक रुकू है, 10 आयत याद करता है तो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। दज्जाल का फितना कोई मामूली फितना नहीं होगा, 40 दिन रहेगा फितना वो, लेकिन पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन
एक हफ्ते के बराबर, बाकी दूसरे अय्याम अपने होंगे। लेकिन फितना इतना बड़ा होगा कि एक इंसान उसको देखेगा तो अपना ईमान खो बैठेगा, इतना वो ताकतवर होगा। अल्लाह ताला उसको फितने के आजमाइश कर इतने सारे से खुदा दिए होंगे, वो कहेगा आसमान से, ए आसमान बारिश बरसा, तो बारिश बरसाएगी। जमीन से कहेगा अनाज उगा, तो जमीन अनाज उगाएगी। उसके साथ रोटियों के पहाड़ चलते रहेंगे। उसके पास इतनी ताकत होगी, वो मुर्दे को जिंदा करेगा। कहेगा फला बंदे से, इसके एक हाथ में जन्नत, एक हाथ में जहन्नम होगी। जो उसकी बात मानेगा वो उसे अपने जहन्नम में डालेगा, जो उसकी बात नहीं मानेगा, जो उसकी बात मानेगा उसे जन्नत में डालेगा अपने हाथ की, और जो उसकी बात नहीं मानेगा वो उसे जहन्नम में डाल देगा। मेरे दोस्त और भाइयों, बहुत बड़ा फितना होगा, लेकिन उसके फितने से महफूज कौन बचेंगे? वो बचेंगे जो सूरह कहफ की 10 आयत याद की होंगी। कि सिर्फ हाफिज के लिए आलिम जरूरी क्यों? सिर्फ सूरह कहफ की आयत, उनके हाफिज कुरान है, उन्हें पूरा कुरान याद है। सूरह कहफ छोड़ पूरा कुरान याद है, वो जब चाहे जब पढ़ सकते हैं। घर से निकले 10 आयतें यहाँ आज तक आयतें मस्जिद से पढ़ सकते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे इतने सारे लोगों से, कितने लोगों ने सूरह कहफ की शुरू की 10 आयत याद की? कितने खवातीन हैं जिन्होंने, हमारी बहनें जो जिनकी आसानी है याद करने में, अगर कुरान अगर याद करने में आसान नहीं होता तो दुनिया में करोड़ों इतने हाफिज नहीं होते। सबसे ज्यादा किसके हाफिज हैं? ना गीता, जो पंडित पढ़ने वाले ना, उनको खुद गीता के बारे में मालूम कि गीता में क्या लिखा हुआ, वेद नहीं मालूम। अरे वो तो छोड़िए भाई, हम मुसलमानों में जो उर्दू किताबें हैं, जो हिंदी किताबें, किसको याद है पूरी हिंदी किताब बताइए, जो हमने कई बार पढ़ा हुआ, एग्जाम उसका दिया होगा, आज किसी को याद है? लेकिन करोड़ों हाफिज से मिलेंगे रात में नींद 2 बजे, नींद जिसे ऋषि तारीख से उठाओ, पूछो ये आयत कहां पे, बताएगा वो हाफिज कुरान, फला पारा, फला सूरत, आयत नंबर, सफा नंबर, लाइन नंबर, 70 नंबर, इतनी इस ऐसे से हाफिज हमारे दरमियान है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त कुरान मौजूदा है। क्या हम सूरह कहफ की शुरू की 10 आयत और आखिरी 10 आयत याद नहीं कर सकते हैं? याद कीजिए और जुमानी पढ़िए मेरे दोस्त और भाइयों, पूरा सूरह कहफ पढ़िए। और पूरा सूरह कहफ पढ़ने के लिए एक हाफिज कुरान को 15 से 16 मिनट लगता है, एक आम आदमी को 25 मिनट, बहुत चल 20 या 25 मिनट लगेंगे, मान लो आधा घंटा लगेगा। आप सुबह फजर के बाद जब भी मौका मिले, आप 24 घंटे के अंदर, यानी जुमरात जब खत्म होता है, गुरूब हो जाता है, यानी मगरिब से लेकर असर के बाद तक, जुमा के दिन हम सूरह कहफ की तिलावत कर सकते हैं मेरे दोस्त और भाइयों। चलिए आगे चलते हैं। अबू सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़रा सूरह कहफ फी यौम जुमाती आदा लहु मिन नूर मा लल जुमाती, सही जाने की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जो बंदा जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ता है, सूरह कहफ की तिलावत करता है, तो अल्लाह ताला ये जुमा से दूसरे जुमा तक उसके लिए नूर रख देते हैं। नूर होता है हमारे लिए, हम नूर के जरिए, हम अल्लाह से हमें जब नूर अता करेगा, हम गुनाहों से बचेंगे, परेशानियों से बचेंगे, मुसीबतों से बचेंगे। तो मेरे दोस्त भाइयों, इसकी हमें पाबंदी करना जरूरी है, बहुत जरूरी है मेरे दोस्त भाइयों। चलिए यौम जुमा का तीसरा पैगाम मेरे आपके लिए क्या है? यौम जुमा जो आता है, क्या पैगाम लेकर आता है उम्मत मुहम्मदिया के लिए? 2 पैगाम बताया। क्या क्या बताया आपको मालूम होना चाहिए। जुमा के दिन क्या क्या फजलत है, जुमा के दिन हमें क्या करना चाहिए, नमाज का उसे बताया, नमाज का पैगाम किस तरीके से कौन सी नमाज पढ़ना है, जुमा की नमाज, जुमा की फजर नमाज, क्या सवाब है, ये पैगाम हमें बता रहा है। ठीक है, हज उम्र का सवाब। दूसरा जो मैंने बताया वो ये है कि कुरान की तिलावत सूरह कहफ जुमा में पढ़ेंगे तो कितना बड़ी बात है कि दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगे, याद करेंगे है? और पढ़ेंगे तो नूर होगा हमारे दरमियान जो हम हमारे दरमियान सवाब के बड़ा अंबार होगा मेरे दोस्त और भाइयों। चलिए हम देखते हैं ये जुमा का तीसरा पैगाम हमारे आपके लिए क्या है। वो है, आज अफसर हम इतने बखील बन चुके हैं मेरे दोस्त और भाइयों, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद कितना पढ़ते हैं। आज जुमा का दिन है, हर दिन सुबह और शाम, हर वक्त जब भी मौका मिले, जुबान से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है, चलते फिरते कितना टाइम और कितनी मुश्किल हो रही, बताइए। जुमा पर आसान है लेकिन हम कितना पढ़ते हैं मेरे दोस्त और भाइयों। देखिए कसरत से दरूद शरीफ पढ़ना, दरूद आप नंबर भेजना, हर दिन पढ़ना, लिखे खास जुमा के दिन, इसलिए कि हजरत नबी के उसने फरमाते हैं तुम जुमा के दिन तुम मेरे पर क्या करो, दरूद पढ़ लिया करो, इसलिए कि तुम्हारे दरूद यानी किसी दिन पढ़ो लेकिन तुम्हारे दरूद मुझ तक पहुंचाए जाते हैं, मुझ पर पेश किए जाते हैं।
अबू दाऊद की रिवायत मेरे दोस्त और भाइयों से रिवायत है। और ऐसी मेरे दोस्त और भाइयों जुमा के दिन दरूद पढ़ना ये नेकियों के बाहर का जरिया है। वक्त नहीं है, मैं मुख्तसर बता रहा हूं मेरे दोस्त और भाइयों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारे अहादीस हमें मिलते हैं मेरे दोस्त और भाइयों। याद रखिए, आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि जो बंदा सुबह को 10 मरतबा, शाम को 10 मरतबा मेरे पर दरूद पड़ेगा तो कयामत के दिन ऐसे बंदे के लिए शिफात होगी। हदीस क्या है देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अरबी हदीस देखिए, मन सल्ला हीना अशरन वयम से अशरन, जो बंदा सुबह को 10 मरतबा, शाम को 10 मरतबा मुझसे दरूद पढ़ता है तो असदुल्लाह से शफात यौम क़यामा, तो ऐसा बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफात का हकदार बनेगा। यानी बाकिस्मत है वो आदमी कितना तकदीर वाला है जो क़यामत के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का हकदार बन जाए मेरे दोस्त और भाइयों। और आप बता दें हदीस, हम तमाम लोग चाहते हैं ना कि क़यामत के दिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाए, मुस्तफा नबी के समय करीब हो जाए, उसके लिए क्या करना है, ये पढ़ना है। और नास यौमल क़यामत अकरम अला सलातिन, आप फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे करीब मेरे नजदीक वो होगा जो मेरे पर सबसे दरूद पढ़ने वाला है। आज कितने लोगों ने सुबह को 10 मिनट दरूद पढ़ा बताइए? जुमा का दिन है, कितने बार जब आपने निकला घर से मस्जिद में आए आपने कितने मिनट दरूद पढ़ा बताइए? 10 मरतबा, 20 मरतबा, 100 मरतबा, कितने बार आपने पढ़ा होगा? इसका जायजा लीजिए मेरे दोस्त और भाइयों। और दरूद पढ़ना ये गमों को दूर करने वाला है, ये मुसीबतों को दूर करने वाला है। दरूद पढ़ना सल्लम पर ये गुनाहों को मिटाने वाला है, बख्शीश का जरिया है मेरे दोस्त और भाइयों, दर्जात की बुलंदी है। अल्लाह ताला अपनी 10 रहमतें ये करता है, जो एक मरतबा जो बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पढ़ता है, 10 रहमतें उसके 10 गुनाह माफ किए जाते हैं, उसके 10 दर्जात को बुलंद किए जाते हैं, उसमें 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। यानी नेकियों का बहार हमारे लिए, लेकिन हम जुबान से इतना नहीं कह सकते हैं। आज एक इंसान 1000 रुपए कमाने के लिए खून पसीना बहाता है, लेकिन नेकियां कमाने के लिए जो नेकियां आखिर में काम आने वाली हैं मेरे दोस्त और भाइयों, कयामत का दिन बढ़ता होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, या जो नेकियां हो हमारे वहां कम करेंगी, हम कहां से नेकियां लेकर आएंगे मेरे दोस्त और भाइयों? आज हम एक अच्छे फ्यूचर के लिए, जबकि फ्यूचर पे भरोसा नहीं है, हम कभी मर सकते हैं, अभी कभी मर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने फ्यूचर के लिए पैसे जमा करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, अपने आप को थका देते हैं, अपने आप को बेच देते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, जबकि मुस्तकबिल किसी ने नहीं देखा। लेकिन कयामत आने वाली है, 100% ये भरोसा है कि कयामत का दिन आने वाला है, हिसाब किताब होने वाला है, नेकियों का हिसाब होगा, गुनाहों का हिसाब होगा। जो बंदे क्या कमाया दुनिया में, कितना खोया, कितना नाफरमानी अल्लाह की, कितना सवाब कमाया, इसका भी होने वाला है मेरे दोस्त और भाइयों। ये नेकियां वहां काम आएंगे। चलिए यौम जुमा का चौथा पैगाम मेरे आपके नाम क्या है? 2 पैगाम बयान करके बात खत्म करता हूं, वो है आदाब। जुमा हमारे लिए अदब बताता है, कुछ आदाब बताता है। आज हम मुसलमान है ना, हमारे माशरे में बेअदबी बहुत होती है, इसे समझाया जाए अहादीस की रोशनी में। आज बेअदबी हमारे अंदर बहुत है, बादत हम खत्म हो चुके हैं मेरे दोस्त और भाई। हमारा जो दिन है ना, इतने सब लोग कहते हैं ये जो दिन है बेअदब दिन वाला नहीं है, हमारा दिन बाअदब दिन है। हमारा दिन हर चीज का आदब बताया, तरीका बताया, बैठने का, चलने का, ना हर चीज का बताया। आइए मैं आपके सामने बताता हूं, सुनिएगा, ये हदीस बहुत जरूरी है, बहुत सारी चीजें मेरे दोस्त और भाइयों। देखिए, सबसे पहला आदत तो ये है कि हमें नमाज फजर अदा करना है, मैंने उसकी फजर बताया। नंबर 2 सूरह कहफ पढ़ना, मैंने इसके बारे में बयान किया। नंबर 3 गुस्ल करना, ये भी अदब है। नंबर 4 सबसे अहम चीज, बहुत सारे लोग मस्जिद में आते हैं लेकिन तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ते हैं, बहुत बुरी बात है मेरे दोस्त और भाइयों। हम नबी की नाफरमानी कर रहे हैं, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा जा अहदुकुम मस्जिद फलयरका रकातैन, कि जब तुम में से कोई मस्जिद में आए तो ना बैठे यहां तक कि 2 रकात नमाज अदा करे फिर बैठ जाए। ये तो आम नमाज के लिए हो गया, बल्कि आप फरमाते जुमा के दिन अगर इमाम खुतबा दे रहा है, इमाम मिंबर पर है, अगर किसी वजह से बच्चा को पहले आना है इमाम की, लेकिन किसी वजह से देर हो गई है, इमाम खुतबा शुरू कर दिया है, तो उस वक्त भी आपको 2 रकातें पहले अदा करना है और मुख्तसर अदा करके फिर बैठना है। ये हदीस से बता रहा, वक्त नहीं, जो मैं हदीस बयान नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी खुलासा है वो हदीस के रूप से आपके सामने बयान कर रहा हूं मेरे दोस्त और भाइयों। ऐसे ही खामोशी से बैठना है। आज हमारे अंदर इतनी बेअदबी हो चुकी है, इधर बात हो रही है से अल्लाह के रसूल की, कुछ लोग आते हैं बात कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं,
एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुराना है मेरे दोस्त और भाइयों, कितनी अफसोस की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इदा उल्टा, इसीलिए एक हदीस सुनेगा, इदा उल्टा लिसाहिब यौम जुमाती अनसित व इमाम यख्तुबु फक़द लगौता। आप सल्लम फरमाते हैं एक तुम में से कोई आदमी किसी को सिर्फ ये कहता है बंदे खामोश हो जा, जुमा के दिन और इमाम खुतबा दे रहा और कोई कहता अपने साथी में खामोश हो जा, तो गोया उसने यही कर दी, उसने लोग वही बात कर दी, उसको तो छोड़ दीजिए। जो अगर हंसता है, बातें कर रहा है, जो कह रहा खामोश बैठ गया, इशारे से कह रहा, तो उसने यही कर दिया, और जिसने यही कर दिया उसकी जुमा की नमाज नहीं है। कितने आज हमारे लोग हैं इतने जो जुमा में आते हैं, बातें जोर से करेंगे, हंसेंगे बाकायदा। मेरे दोस्त और भाई, बहुत अफसोस की बात है। एक और मैं बताता हूँ, जो आज एक बेअदबी, इतनी बड़ी बेअदबी मस्जिद के अंदर, जुमा के अंदर, वो क्या है मालूम है? घुटनों को पकड़ के बैठना, यानी कि अपने कमर को नीचे झुका के जो घुटने से ऊपर के बैठना पकड़ के, ये बहुत गलत तरीका है। हदीस में आता है, ये अभी नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले ये मना किया इस चीज से। हदीस क्या है देखिएगा, हाँ, कि नबी करीम फरमाते हैं कि अन्य रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ने मना किया है, जब जुमा का दिन हो और इमाम खुतबा दे रहा है, तो तुमने से आप ने मना किया है कि कोई आदमी अपने घुटनों को पकड़ के ना बैठे, इस तरह ऐसे, यानी कि शुरू के नीचे रखना, घुटने उठाना, उस पर से पकड़ के बैठना, उसमें सर रखना, ये बहुत बुरी बात है। आप ने साफ अल्फाज में एक मना किया है कि तुमने से कोई भी आदमी ऐसा ना बैठे अपने घुटनों को पकड़कर। ये अदब देखिए, आपने बताया अदब क्या, दो जानो बैठिए, चलो चार जानो बैठिए, तो जो हमारे तरफ पूरी तरफ दीजिए, लेकिन ये नहीं कि कोई बैठा इस तरह से, कोई नजर बैठा बुला हो जाते लगाकर। चलो बुजुर्ग है, कमजोर है, अलग बात है, लेकिन नौजवान है, ताकत अल्लाह ने दी है। क्या नौजवान किस काम की बताइए, जब हमें मसजिद में तरीका तक नहीं, हमारे पास इतनी ताकत नहीं नौजवानों के अंदर कि मस्जिद में हम अदब से बैठ सके। एक स्टूडेंट कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, 8-8 घंटे पढ़ाई होती है, वहां पर अदब कौन टीचर के सामने, और जब हम मस्जिद में अल्लाह के घर में, जहां पर अल्लाह की बात, जहां पर रसूल की बात हो रही है, जहां नबी ने मना किया, अदब बताया, उसके बावजूद हम बेअदबी हमारे अंदर आ चुके। मेरे दोस्त और भाइयों, एक और बात बता देता हूं मेरे दोस्त और भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि कोई आदमी बैठा हुआ है, उस आदमी को उठाकर उसी जगह पर बैठ जाना। नबी रसूल फरमाते हैं कि आप सल्लम मना करते हैं कि तुम में से कोई आदमी दूसरे आदमी को उठाकर उसी जगह पर ना बैठे, ये बहुत गलत चीज है। सही बुखारी की रिवायत में दोस्त और भाइयों। और एक बात वुजू की हम में से आती है, बहुत सारे लोग ऐसे अभी कितने लोगों के में सोया हुआ, उसका तरीका बताया ना सोए मेरे दोस्तों भाइयों, आप सल्लम भी उसका तरीका बताते हैं। क्या बताएं देखिए, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी ने फरमाया इज़ा नासा अहदुकुम यौमन फलतहवल अन मजलिसी ज़ालिका, जब जुमा का दिन हो, इमाम खुतबा दे रहा हो, अगर तुम्हें नींद की आती है, तुम्हें नींद आ रही है, तो क्या करो, अपनी जगह से उठो, जगह तब्दील करके बैठो। अगर कोई यहाँ बैठा से नींद आ रही, वो उठे, उठकर इस तरफ आकर बैठे, जायज ऐसा बैठना। क्यों? इसलिए कि इसके दो फायदे, तो नींद उड़ जाएगी, तवज्जो मिल जाएगी, और दूसरा जो अहम है वो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल होगा, आपकी हदीस मुबारक पर अमल होगा, और नबी की कोई भी बात, कोई हदीस, कोई सुन्नत छोटी नहीं, उसका दर्जा बहुत बड़ा है मेरे दोस्त भाई। आसान तो बहुत है, लेकिन दर्जा बहुत बड़ा है। अब बता दो, किसी को नींद आ रही है, वो अगर अपनी जगह से उठकर बैठेगा, उसकी नींद भी खत्म होगी, तवज्जो मिलेगी, और सुन्नत पर अमल होगा मेरे दोस्त भाइयों। आखिरी पैगाम बता के अपनी बात को खत्म करता हूँ। यौम जुमा का 5वां पैगाम मेरे रब के नाम क्या है? वो ये है कि जो लोग जुमा छोड़ते हैं, जुमा में सुस्ती बरतते हैं ना, क्या नुकसान है सुनिएगा। 4 नुकसान बयान करता हूं, उसकी बात को खत्म करता हूं मुख्तसर के अंदर, बहुत मुख्तसर में, वक्त हो चुका काफी। देखिए, नंबर 1, गाफिलिन में लिखा जाए, ऐसा बंदा जो जुमा छोड़ता है, सुस्ती करता है, नबी के फरमाते नहीं, हदीस का तर्जुमा सुनिएगा, बड़े लोगों बात आ जाओ जुमा छोड़ने से। अगर तुम बात नहीं आओगे तो कहते मैं रब वो कादिर है जो तुम्हारे दिलों को थप्पा लगा देगा, तुम्हारे दिलों को फेर देगा, और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा देगा। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने अभी जहां से काफिरों पर मोहर लगा दी, जुमा को छोड़ने और जुमा में सुस्ती करने वालों पर अल्लाह ताला मोहर लगा सकता है, फरमाते हैं। और रिवायत सही जानी की रिवायत है। नंबर 2, जो बंदा जुमा में सुस्ती, जुमा को छोड़ता है, उसके नजदीक अहमियत इस्लाम नहीं, इस्लाम की अहमियत ही नहीं है, वो बंदा है इस्लाम को मानने वाला ही नहीं है। अहमियत सुने ना किसे कहते हैं, वो अहमियत देता ही नहीं है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा 3 जुमा छोड़ा बगैर किसी उज़्र के,
बगैर जुमा छोड़ा सृष्टि किया तो फकत अगर इस्लाम वरा दुहरी, गोया उसने इस्लाम को अपने पीठ पीछे छोड़ दिया। यानी इस्लाम की अहमियत उसकी नजर में कुछ नहीं है। इस्लाम को उसने जिस तरीके से यहूदियों ने तौरात को अपने पीठ पीछे डाल दिया था ना, तो गोया ऐसे ही ये भी क्या कर दिया, इस्लाम को पीठ पीछे डाल दिया। सही रिवायत है। नंबर 3, दिल पर मोहर लगा दी जाती, दिल पर क्या लगा दी, मोहर लगा दी जाती है। आप फरमाते हैं जिस बंदे ने 3 जुमा बगैर किसी उज्र के छोड़ दिया तो अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं, थप्पा मार देते हैं। अब वो हिदायत के काबिल नहीं होता, अब वो अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक नहीं होता। अबू दाऊद की रिवायत है। और आखिरी बात नंबर 4, मुनाफिकीन इसका तस्करा लिखा जाता है। मुनाफिकीन में इसका शुमार होगा, लिख दिया जाएगा रजिस्टर में, यह आदमी मुनाफिक है। कौन? आप फरमाते जिसने 3 जुमा छोड़ा वो उस बगैर किसी उज्र के, तो उसे मुनाफिक में लिख दिया जाता है। सहीह जान की रिवायत है। एक आखिरी बात, आज जुमा का दिन है, मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब आए हैं, परेशान होंगे, दुआ करते हैं, दुआ कबूल नहीं होती है, तो बता दो आपको नहीं, मेरे खवातीन इस्लाम आए उनके लिए भी पैगाम है, वो ये है कि जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है, थोड़ा सा वक्त है, और उसमें दुआ कीजिए। अगर वक्त में दुआ करोगे तो जो भी बंदा दुआ करेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करेगा। ये हदीस देखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फीही साअतुन, एक घड़ी ऐसी है, ला युवाफिकु अब्दुल मुस्लिमुन, कि कोई बंदे मोमिन उस घड़ी को पाले, उसमें दुआ करे, तो वो नमाज पढ़े, दुआ करे, तो अल्लाह ताला जो भी दुआ करेगा अल्लाह ताला उसको अता कर देगा। और आप फरमाया वो जो वक्त है ना बहुत कम है, और तरीका बताया कब वक्त है। एक और हदीस के अंदर है जो सुनन तिरमिज़ी में है, आपने फरमाया जुमा के दिन 12 घड़ियां होती हैं, और उन 12 घड़ियों में से एक घड़ी ऐसी होती है जो बहुत छोटी होती है, अगर कोई बंदा दुआ करता है उसकी दुआ फौरन कबूल की जाती है, कोई भी दुआ करे जाए इस दुआ। वो कौन सा वक्त है, अलग अलग बीमारी से बताया है। अल्लाह ने इब्न हजर ने 40 अक़वाल पेश किया, जिसमें 2 बताता हूं जो बहुत मशहूर। वो है जब इमाम मिंबर पर खड़े हो जाता है, ठीक है, मिंबर पर खड़े होने से नमाज का जो वक्त है, आप दिन में जो भी दुआ कीजिए, क्योंकि नमाज आप खुतबे की हालत में है, गोया नमाज की हालत में दुआ करेंगे, या जब इमाम बैठता है दो खुतबे दरमियान, अब मैं बैठूंगा उस खुतबे के बाद दूसरे खुतबे के लिए, तो जब दुआ करेंगे मुख्तसर में वो दुआ उम्मीद। दूसरा जो कौल है वो असर की नमाज से लेकर मगरिब नमाज से, आपने असर नमाज पढ़ लिया, कुछ वक्त बैठिए, दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को नेकी सलामत की तौफीक फरमाए, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को गफलत से बचाए, अल्लाह ताला जुमा की अहमियत को समझने की तौफीक फरमाए, जुमा के जो अहकाम है उन अहकाम को बदलने की तौफीक फरमाए, जुमा की पाबंदी की तौफीक फरमाए। इन्हाल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को नेक व सालेह बना। रब्बुल आलमीन जो आज दिन हमारे गफलत में पड़ चुके हैं, इस गफलत से हमें निकाल दे, तेरी याद से हमारे हम जो रुजगानी कर रहे हैं, रब्बुल आलमीन तू हमें अपना पाबंद बना, इस्लाम का पाबंद बना। रब्बुल आलमीन तू अपनी इबादत हमें पाबंद बना, हमारे दिलों के अंदर ईमान इस्लाम अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को तेरी सच्ची मोहब्बत, तेरे रसूल की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। आमीन।